So welcome, Dr. Sanjay. जी, thank you, Atul ji, and a grand welcome to all of you, right? And a heartily congratulations. In this evening, you are here for listening something which may be beneficial for you. So हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपके परमिशन से, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करता हूँ, कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि I believe you can see this. Yes. So I always believe that everybody wants to be a winner in life. और मेरा हमेशा ये मानना है कि हर एक के अंदर वो पोटेंशियल है. इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि what is the real secret behind unlocking the potential, hidden potential, and what is the structure of exponential growth. So in short, मैं छोटा सा एक अपना परिचय दे देता हूँ. I will take hardly 2 minutes so that आपको पता रहे कि संजय अग्रवाल कौन है, क्योंकि हम लोग अननोन हैं except 2-3 लोगों को. So today's session is on structure of exponential growth. Because why this structure? Because I believe that you have more potential than you have unlocked so far. What I do, I help organizations and entrepreneurs to unlock their true potentials for exponential. Please stay muted, everyone who are not speaking. Thank you. So today I'm going to share mainly 3 models. One, the title of the workshop, the structure of personal and professional growth, why unlocking inner excellence is need of the hour. This I will share. Second, the 3 facets of success triangle used by the billionaires. वो 3 पहलू सक्सेस के, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स, कौन कौन सी 3 एसेंशियल चीजें हैं, वैसे तो हजारों चीजें बताई गई हैं सक्सेस के लिए, उनकी बात करेंगे. और व्हाट इज गॉप्टा एनएलपी फ्रेमवर्क. एज अतुल जी सेड, आई एम वर्किंग ऑन दिस फ्रेमवर्क. I am creator of this Gopta NLP framework, and how it can benefit you with that killer mindset to trigger your exponential growth and maximize your profitability, right? So once again, I will say that everybody wants to be a winner. So how I can help you, as I claimed that I can help you unlock. Please stay muted, everyone. Yep. Okay. So I am Sanjay Agarwal, an author, growth accelerator coach, and Gopta NLP master trainer, and creator and copyright holder of this concept Gopta, and founder of International Gopta NLP Academy. And as Atul Bhai told you, before taking VRS in 2016 to follow my passion to help people grow in their personal and professional lives, I served Ministry of Finance and Government of India for more than 25 years in Custom and Central Excise Department. And turning professional trainer, this decision and this journey was tough initially, right? Journey was tough, but today I am an author with many published books: How to Add 1000 Productive Hours Here to Your Life, Sleep Its Body Repair Time, Murder Procrastination. It is my latest book, and there are some upcoming books: Business Excellence with Gopta NLP, and Teachers Are Shapers, and for students, many books are coming within next 4 months. And there are around 1 lakh followers across Facebook and LinkedIn, and many various newspapers and various magazines have published my articles in different forums. This was in Economic Times magazine, Physical magazine, and last year I was a speaker at International NLP conference along with the legends of NLP world representing India. And even bigger news is that last year in 2021 we organized International NLP conference for business excellence, where 28 top-notch NLP trainers from 11 countries participated and addressed to the participants of 37 countries how they can unlock their business excellence. That was huge success. And the theme of the next conference is NLP in education. So this was me in brief in 2 minutes, what I do, how I do. So now coming to the point, ये मेरे हर वर्कशॉप की, हर बुक की पहली लाइन होती है हमेशा. ये लाइन मेरे दिल के सबसे करीब है. यू आर द आउटकम ऑफ योर चॉइसेस. मेरी जितनी भी किताबें हैं सबकी पहली लाइन यही है, यू आर द आउटकम ऑफ योर चॉइसेस. बिकॉज इन लाइफ यू टेक वेरियस डिसीजंस, एंड बाय चॉइस यू चूज द पाथ ऑफ नो ग्रोथ और मीडियम ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो आप कहेंगे कि नहीं, हर व्यक्ति एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चूज करेगा. हर व्यक्ति एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहता है, डिजायर रखता है,
चाहता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाए, चूज नहीं करता. So I always say that you are the outcome of your choices. Whatever you are today, what I am today, that is the outcome of the choices made in the past. And whatever you will be tomorrow, or whatever I will be tomorrow, that will be the outcome of the choices you make or I make in the present moment. Agreed or not? Yes, sir. Wow, क्या बात है sir. Thank you. So, unlocking your excellence ये क्यों जरूरी है? जो हम बात कर रहे हैं आज, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर आर सम ब्रेक्स टू ग्रोथ एक्सेलरेशन. एक इमेज दिखाता हूं आपको. ये आपने देखा होगा जब कहीं कोई मकान बनता है तो वहां सीमेंट घोलते हैं, उसमें पानी डालते हैं ऐसे बना करके. देखा है किसी ने? सीमेंट घोलते हैं हम सब. और इसमें अगर आप सोचिए कि 3 या 4 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए इस पानी में खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? पैर गंदा हो जाएगा. बाहर निकलेंगे, पैर धो लेंगे. लेकिन सोचिए अगर 6-7 घंटे खड़े रह जाएं और ये जमने लगे तो क्या होगा? पैर बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा. बहुत मुश्किल से पैर बाहर निकाल पाएंगे, राइट? निकाल तो लेंगे लेकिन छेनी हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी. और हम चाहते क्या है? ये, इसको मैं कहता हूं ये कंफर्ट जोन है. 20 साल, 25 साल, 30 साल या 40 सालों से हम इस सीमेंट में, कंफर्ट जोन के सीमेंट में घुसे हुए हैं. और जो हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, उसे अनलॉक करना नहीं चाहते, कर नहीं रहे. और हम इस दलदल में घुसे हुए हैं, कंफर्ट जोन के दलदल में घुसे हुए हैं. और चाहते क्या है? हम दिल से चाहते हैं हमारी जी रॉकेट की तरह उड़ान भरे हमारी जिंदगी और जाके सीधे वहां लैंड करें अपने गोल पे. और गोल भी खूब बड़े बड़े इच्छाओं के जो पहाड़ हैं वहां पे जा करके हम लैंड करें. लेकिन इस दलदल की वजह से हम बाहर निकल नहीं पाते. दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नेसेसरी. इसको समझना जरूरी है. एंड दिस इज वेरी सिंपल बट प्रोफाउंड, राइट? सुनकर के आपको लगेगा कि कितनी सिंपल सी बात है, ये तो हमें सब पता है पहले से. लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे इन 4 पहलुओं पर विचार करना कितना जरूरी है, सो हम इस बात को समझेंगे. मैं एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं. प्लीज कंफर्म मी इफ यू कैन सी दिस. ये दिख रहा है आपको? या दिख रहा है. ओके जी, थैंक यू. सो व्हाट हैपेंस कि लाइफ में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, कई बार बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटी, बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, कई बार साइमल्टेनियस एक्टिविटीज. बहुत व्यस्त है जी, एक्टिविटीज एक्टिविटीज एक्टिविटीज. और हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे, जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगी. सच भी है, मेहनत करने का फल मिलता है, सफलता मिलती है. One fine morning, I request everyone to stay muted. If you are not speaking, please stay muted, everyone. You can unmute yourself when you want to speak. Please stay muted. It disturbs everyone. Okay. So one fine morning, बल्कि in your case, fine evening, एक व्यक्ति आता है आपकी जिंदगी में जो कहता है कि आपके पास गोल्स होने चाहिए. और आपको लगता है यस होने चाहिए. और आप देखते हो कि मेरी अभी उन गोल्स के अगेंस्ट में क्या सिचुएशन है. नो डाउट गोल्स हमेशा बड़े होते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम आज छोटे हैं. गोल्स हमेशा बड़े होते हैं. तो उसके कंपैरिजन में कोई भी चीज हो, हम यहाँ पे कुछ हद तक उससे छोटे ही होंगे, क्योंकि गोल्स हर व्यक्ति के बड़े होते हैं अपनी करंट. अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो उस वक्त से योर एवरी थॉट, एवरी एक्शन, एवरी टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न इज टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स. चाहे आप बड़े बड़े एक्शन लें, चाहे आप छोटे छोटे एक्शन लें, चाहे साइमल्टेनियस एक्शन लें, बहुत काम कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी, एवरीवन. Atul ji, as a host, you can mute everyone, please. So if I, okay. Right, I've muted everybody. Sanjay ji, you can please, yeah, done. Thanks. Okay. So चाहे आप छोटे छोटे एक्शन लें, चाहे बड़े बड़े एक्शंस लें, साइमल्टेनियस एक्शन लें,
लेकिन बनाने से गोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे, इतना सिंपल है क्या? हंसी खेल है क्या? फिर तो कोई भी कुछ भी गोल बना लेगा और गोल्स हासिल कर लेगा। नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से गोल्स हासिल नहीं होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो नीचे खींचेंगी हमें। अनरिसोर्सफुल बिलीफ्स, नेगेटिव टाइम यूटिलाइजेशन हैबिट्स, गोल्स को हासिल करने की रेसिपी को ना पता होना, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें नीचे ट्रैक करेंगी। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसे कहता हूं? मैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहता हूं अगर आपके पास ये चीजें हैं चार तो। पहला, आपको अपने गोल्स का पता हो कि मुझे कौन से गोल्स, मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। वन थिंग, गोल्स का पता होना जरूरी। दूसरा, गोल्स को हासिल करने की मानसिकता भी हो हमारे पास। सिर्फ गोल्स बना लेने से गोल्स हासिल नहीं हो जाते। हम जो किताबें पढ़ते हैं उसमें गोल सेटिंग की रेसिपी बताई जाती है। हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, बताया जाता है स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए, ये करना चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। गोल सेटिंग की रेसिपी बहुत बताई जाती है हमको। गोल्स हासिल करने का माइंडसेट अगर नहीं है हमारे पास तो हम गोल्स हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दो चीजें ये हुई। और नेगेटिव साइड में कौन सी चीजें हमें ड्रैग डाउन करती हैं, इन चीजों को हम आइडेंटिफाई करें। इनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये हर व्यक्ति की अलग अलग होंगी, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करनी होगी। जिस तरह से आप अपने गोल्स खुद आइडेंटिफाई करेंगे, उसी तरह ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे कौन सी चीजें नीचे ड्रैग करती हैं और इनको ओवरकम करने की रेसिपी और माइंडसेट क्या है। ये देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये मेरे जीवन भर के अनुभव का निचोड़ है कि हमें ये चार चीजों पर काम करना आवश्यक है। मुझे मेरे गोल्स क्या हैं वो पता होना चाहिए, उन्हें हासिल करने की रेसिपी और माइंडसेट होना चाहिए मेरे पास, कौन कौन से फैक्टर्स मुझे नीचे ड्रैग करते हैं वो पता होना चाहिए, और उन्हें ओवरकम करने की रेसिपी और माइंडसेट होना चाहिए मेरे पास। आई कॉल दिस एज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको हासिल करने का रेसिपी भी अभी आगे बताऊंगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि ये चार क्षेत्र कौन से हैं जिन चार क्षेत्रों में हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। सहमत या असहमत? कितने लोग सहमत हैं इससे, इस चार्ट से? कोई डिस्कशन? जी जी सर, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। Agree, sir. I just said I agree. वाओ जी, अतुल जी कुछ कह रहे हैं? मैंने तो थम्स अप दिया जी। अच्छा, थम्स अप दिया, थैंक यू जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेल्योर? सक्सेस की बड़ी डेफिनेशंस बताई गई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं चैट बॉक्स में लिखने के लिए कि आप सक्सेस की क्या डेफिनेशन समझते हैं, क्या है सक्सेस आपकी नजरों में? यू कैन स्पीक और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, बिकॉज हम छोटा सा ग्रुप है तो हम इनफॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं। ये कोई फॉर्मल वर्कशॉप नहीं है, हम लोग एक क्लोज्ड ग्रुप में हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फील फ्री टू इंटरेक्ट, फील फ्री टू स्पीक। सर, अपनी मर्जी से फ्री टाइम होना और उसको यूटिलाइज कर पाना। वंडरफुल वंडरफुल, अपना समय अपने कंट्रोल में है, बिल्कुल सही बात। ये सक्सेस की कनोटेशन है आपके दिमाग में। कोई और? एनी अदर डेफिनेशन? किसी और के दिमाग में कोई कनोटेशन है सक्सेस का? Someone would like to speak? लेट दी सुपर होस्ट स्पीक। अतुल जी बताएंगे। वो तो बहुत सारी डेफिनेशन बता देंगे। तो मेरे हिसाब से बीइंग सेटिस्फाइड विद द मैनर इन विच लाइफ इज गोइंग। ग्रेट 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 ग्रेट। एक मजेदार चीज मार्क करी आपने, सभी लोगों ने, दो लोगों ने दो कनोटेशंस बताए, और मजेदार चीज है कि दोनों सही। अगर सारे लोग बोले, हम 12 लोग, तो 12 लोग अलग अलग बातें बताएंगे, और मजेदार चीज है कि वो सब सही होंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई डेफिनेशन नहीं है सक्सेस की। हमारे दिमाग में सक्सेस का कनोटेशन क्या है, ये वो है, राइट। एक बहुत ही खूबसूरत कनोटेशन जिग जिगलर साहब ने दिया है। ये तो है नॉर्मली जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं यस, अगर हम जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस है, तो हम सक्सेसफुल हैं, या कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल है। जिग जिगलर साहब ने एक बहुत अच्छा कनोटेशन दिया है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है।
वो कहते हैं मेंटेनिंग ए रीजनेबल बैलेंस अमंग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसा खुराना सर ने कहा, फ्री टाइम हो हमारे पास, हमारी टाइम पर कंट्रोल हो, ताकि हम जहां पे उस समय को लगाना है वहां पे हम उस समय को लगा सकें। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक रीजनेबल बैलेंस बना करके रख सकें। दिस इज सक्सेस। देन योर सक्सेस बिकम्स हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, एंजॉयमेंट आ जाता है जिंदगी में। और फेल्योर क्या है? एक तो डेफिनेशन वो हो गई कि भाई सक्सेस की जो भी हमारे दिमाग में डेफिनेशन है वो नहीं हासिल हुआ तो फेल्योर है। और एक कनोटेशन है कि इफ यू आर एन अंडर परफॉर्मर इन कंपैरिजन टू योर ओन ट्रू पोटेंशियल, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ फेल्योर, नॉट फेल्योर। कई बार लोग मुझसे कहते हैं ऐसे तो अंबानी भी फेल्योर है, उसका ट्रू पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, भगवान का अंश है, भगवान का अंश होने के नाते तो बहुत कुछ कर सकता है, अभी तो उतना नहीं किया। नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अनलिमिटेड पोटेंशियल बीइंग part of the universal supreme being. I'm not talking about that unlimited potential. I'm talking about that potential which you can unlock, but you are not unlocking due to staying in comfort zone. उसको नाम कुछ भी दे देते हैं, हम कहते हैं हम संतोषी प्रवृत्ति के हैं, जिंदगी ने जो दे दिया आई एम हैप्पी। वो हमारे बहुत सारे कनोटेशन होते हैं, हमारे बहुत सारे नाम होते हैं, नोमेनक्लेचर, अपने बहाने बनाने के, अपने आप से बहाने बनाने के। हम सिर्फ दूसरों से ही बहाने नहीं बनाते, हम सबसे ज्यादा बहाने अपने आप से बनाते हैं, राइट? अंडर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू योर ओन ट्रू पोटेंशियल इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ फेल्योर, ए टाइप ऑफ फेल्योर। सो मेरे हिसाब से सक्सेस और फेल्योर की ये डेफिनेशंस आती हैं अगर इनको हम समझ लें गहराई से और इन पर काम करना शुरू करें, यानी कि हम अपनी जिंदगी में रीजनेबल बैलेंस बनाना शुरू करें डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में, फैमिली में, हेल्थ में, एंजॉयमेंट में, करियर में, फाइनेंस में, सोशल कंट्रीब्यूशन में, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, और जो भी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ आप समझते हो, मौज मस्ती, एंजॉयमेंट, जो भी समझते हो, उन सब में एक रीजनेबल बैलेंस बना के रखें और अपने पोटेंशियल को एज फार एज पॉसिबल अनलॉक करते रहें, अपना बेटर वर्जन बनते रहें। कल से बेहतर जो यस्टरडे है उससे बेहतर आज हो और आज से बेहतर कल यानी कि टुमारो हो, तो हमारा पोटेंशियल अनलॉक होता चला जाएगा और हम ग्रो करते चले जाएंगे। अभी मैं तेज चल रहा हूँ, रीजन इज कि हमने एक एक्टिविटी प्लान करी है आज, जो मैंने शेयर भी किया था कि मैं आज खास एक्टिविटी करूंगा जिसमें लगभग 20-25 मिनट लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उस एक्टिविटी में हम आराम से सुकून से करें उस एक्टिविटी को, बिकॉज उस एक्टिविटी को करने के बाद एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है लाइफ में। सो व्हाट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम मेकिंग एप्रोप्रिएट चॉइसेस? इधर जाऊं कि उधर जाऊं या सामने जाऊं? सब रास्ते सही लगते हैं, कई बार सब रास्ते गलत लगते हैं। ये हर रास्ता सही है, ये कई बार लगता है हर रास्ता गलत है, जिधर जाऊंगा वही गलत है। कंफ्यूजन, डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स, तरह तरह के डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स, ये हमें नीचे खींचते रहते हैं। तो यू हैव टू चूज टू वर्क ऑन बिलीफ्स एंड वैल्यूज, चूज टू वर्क ऑन बिलीफ्स एंड वैल्यूज, अपने बिलीफ्स वैल्यूज पे काम कीजिए। व्हाई? सोचिए, क्या एक ट्रेन इंजन से तेज भाग सकती है? इंजन चल रहा है 60 की स्पीड पे, क्या उसके पीछे की बोगियां 80-90 की स्पीड पे चलती हैं? पॉसिबल नहीं है। हमारा जो ब्रेन है वही है हमारा इंजन लाइफ चलने का, जो हमारी जिंदगी को चलाता है। कहते हैं कि भगवान ने 2 चीजें बराबर दी हमें, 24 घंटे का दिन और ये ब्रेन। इन दोनों को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, दिस इज द डिफरेंस विच मेक्स द डिफरेंस बिटवीन हाईली सक्सेसफुल पीपल एंड मीडियोकर पीपल। समय का और अपने दिमाग का जो हमें चीजें भगवान ने बराबर दी, हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसे ग्रो करते हैं, कहां कहां पे अलोकेट करते हैं, दिस मेक्स द डिफरेंस। और मजेदार चीज ये है कि हम अपने दिमाग पर काम आसानी से करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि जो 23, 24, 25 साल तक जो हमने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिए, दैट इज इनफ। और अब हमारा लर्निंग का फेज खत्म हो गया, अब हमारा अर्निंग का फेज आ गया। इट हैपेंस और नॉट? बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। सो आई सजेस्ट, ऑलवेज सजेस्ट, मेरी बुक में तो पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। अगर किसी ने मेरी बुक पढ़ी हो, हाउ टू ऐड 1000 प्रोडक्टिव आवर्स ईयर टू योर लाइफ, चैप्टर 11 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बिकम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर ब्रेन, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ,
Attend every seminar you can. Do not wait for your organization to sponsor it for you. क्यों? क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन भेजता है किसी को डेप्यूट करके, तो वो वहां खाली पेड पार्टी करने जाता है, लर्निंग लेने नहीं जाता। लर्निंग लेने सिर्फ तभी जाओगे आप जब अपनी जेब से भले 200 रुपए खर्च हो, 50,000 खर्च हो कि 5 लाख की 200, डजेंट मटेरियल, लेकिन अगर आपने 200 रुपए भी खर्च किए, दैट मीन्स कि हमें मालूम है कि हम लर्निंग लेने के लिए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का वेट ना करें। कीप असाइड 5 to 10% ऑफ योर इनकम फॉर योर सेल्फ इंप्रूवमेंट। जिम रॉन साहब कहते हैं कि 10% इनकम का अपना आप अलग रखिए, because you get crux of the whole life learning of an author and a speaker for a small price. Because your earning capacity is your most important financial asset. तो ये जो हमारा रियल इस्टेट है, मैं लोग प्लॉट को और मकान को रियल इस्टेट कहते हैं, मैं इसको रियल इस्टेट कहता हूँ, और ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। उसको दूसरे रूप में हमारे हिंदू मिथोलॉजी में तो कहा जाता है कि भाई रियल इस्टेट, आप ये विद्याधन है, या आपने जो अपने दिमाग पे काम कर लिया वो हमेशा साथ रहेगा, बाकी सारी चीजें नष्ट हो सकती हैं, ये वाली एसेट नष्ट नहीं हो सकती जो आपने अपने दिमाग पे काम कर लिया। सो आई ऑलवेज से दैट दिस इज द रियल एस्टेट, बाय दिस रियल एस्टेट। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रियल एस्टेट बाय करें, इसके अंदर इन्वेस्ट करें हमेशा। व्हाई? सो दैट यू कैन मूव फ्रॉम नेगेटिव्स टू पॉजिटिव्स इन ईच वॉक ऑफ लाइफ, इन योर थॉट प्रोसेस, राइट? सो after discussing this structure of exponential growth, I will come to the second topic, 3 major challenges. But before that, I ask you a question, whether there is any question or any discussion required, because I am moving very fast till now. Any question? मैं टाइम बचा रहा हूं आगे की एक्टिविटी के लिए। 100% क्लियर। वाह, क्या बात है सर, वंडरफुल। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अतुल भाई ने भी बताया और मैंने भी आपसे शेयर किया, अपने 26 साल की नौकरी के दौरान जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, कुछ ऐसे चैलेंजिंग पोस्टिंग्स भी रही मेरी। जैसे फॉर मोर देन 5 years आई वाज वर्किंग एज सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम देश भर में जाते थे। हमारा एरिया ऑल इंडिया हुआ करता था सर्चेस के लिए, बिग गन्स को ही सर्च करते थे उनके, बिकॉज आई वॉज ग्रिलिंग एक्सपर्ट। तो उनके जो मालिकान होते थे या CFOs होते थे या CEOs होते थे, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने का, उन्हें स्टडी करने का मौका मिलता था। ये देखने का मौका मिलता था कि लोग सोचते किस तरह से हैं, चैलेंजेस क्या आती हैं उनकी, उन्हें कैसे ओवरकम करते हैं, इवन चोरी भी करते हैं तो किस माइंडसेट के तहत करते हैं, ये देखने का मौका मिलता था। एट टाइम्स आई वॉज पोस्टेड एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, जहाँ पे हमें इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था। आई यूज्ड टू स्टडी देम। मैंने पाया कि लोगों के सामने हजारों तरह के चैलेंजेस, हजारों तरह के, लेकिन 3 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई करी हैं, 3 चैलेंजेस ऐसे आइडेंटिफाई किए जिससे मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग जूझते हैं। वो 3 चीजें, और मैं ये पिछले 20 सालों से जिससे भी संपर्क में आता हूं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपके साथ भी इनमें से कोई एक चैलेंज है? और वो 3 चैलेंजेस क्या है? एक, लैक ऑफ गोल्स ओरिएंटेशन, गोल्स का ना होना। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बड़ी मशहूर रिसर्च है जो कहती है दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास लिखित गोल्स होते हैं। और जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करी है तो वो कोई 500-700 लोगों पे नहीं की होगी, लाखों लोगों पे की होगी, और ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम की होगी। उस रिसर्च का परिणाम यह है कि सिर्फ 3% लोगों के पास रिटन गोल्स होते हैं, और देयर इज नो वंडर व्हाई दोस 3% पीपल आर मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। आप सोचिए, जिंदगी में कभी आप सोच के देखिएगा अपनी जिंदगी पीछे, कभी याद करके देखिएगा, कभी ऐसा हुआ कि आप घर से बाहर निकले हों, चाहे आप स्कूल जा रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, या सब्जी लेने जा रहे हों, पिक्चर देखने जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हो, कभी ऐसा हुआ जिंदगी में कि आपको ये ना पता हो कि जब मैं घर के दरवाजे से बाहर निकलूंगा तो पहला स्टेप राइट लूंगा कि लेफ्ट? हमेशा पता होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में डेस्टिनेशन क्लियर है उस वक्त का, इमीडिएट डेस्टिनेशन क्लियर है कि बाजार जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप रास्ता बना देता है उसके लिए, और अपना हमारा जो पैर है अपने आप उधर चलने लगता है, राइट? रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं, ये अधिकांश लोग पूछते नहीं। 97% लोग एज पर रिसर्च नहीं पूछते कि जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं। वो गोल्स नहीं बनाते, और जिन्हें गोल्स बनाते हैं वो भी एक्चुअली गोल्स नहीं होते, वो कुछ तरीके के टारगेट्स होते हैं। उन्हें गोल्स की डेफिनेशन नहीं पता होती, गोल कहते किसको है, राइट?
So this is one of the three major challenges. Second is lack of control on time utilization patterns. वो अपने समय का बहुत ही खराब इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट दुरुपयोग करते हैं. और अगर कहीं ओलंपियाड होने लगे लैक ऑफ कंट्रोल ऑन टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स का, तो इंडियंस हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट होंगे और शायद इंडियंस के लिए एक प्लेटिनम मेडल बनाना पड़े, शायद गोल्ड मेडल भी छोटा पड़ जाएगा. वी आर मास्टर्स ऑफ वेस्टिंग टाइम. एंड थर्ड, लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. लोग समझते हैं कि मेरे तो स्किल्स, मैं तो बड़ा अच्छा हूं कम्युनिकेशन में, प्लेजेंट कम्युनिकेशन से मेरे, बड़ा गुडी गुडी, बड़ा मीठा मीठा बोलता हूं मैं. But they don't know that there is a huge difference between pleasant communications and influencing communications. There is a huge difference between pleasant communications and influencing communications. Can you guide the conversation towards a desired outcome? That is influencing, enriching communication, right? Can you guide the conversation towards a desired outcome, which is win-win for both? That is influencing communication. Again, I will say that there is a huge difference between influencing communication and मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन. अगर आप मैनिपुलेट करेंगे दूसरे व्यक्ति को, तो दूसरा व्यक्ति स्मार्ट है, वो तुरंत समझ जाएगा. मैनिपुलेशन अलग है, इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन अलग है, इनरिचिंग कम्युनिकेशन है, राइट? सो आई एम आस्किंग यू ऑल, इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्या इन तीन बीमारियों में से कोई एक या दो या तीन या जीरो आप में भी है? You can type in the chat box serial number, जैसे 1 3 या 2 3 या 1 2 3 या none. सोचिए 1 मिनट के लिए कि क्या इन तीन में से कोई चैलेंज आपकी जिंदगी में भी है? लक्ष्य का पता ना होना, टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स सही ना होना, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का ना होना. आई एम वेटिंग योर आंसर इन द चैट बॉक्स. Anyone? Are you there? जिन लोगों के वीडियोस ऑफ हैं वो यहाँ पर हैं, आई बिलीव. काजल जी ने कहा 2, लैक ऑफ कंट्रोल ऑन टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स. गुड. 2 1. ओके. 1 1, केवल 3 कवियां, बाकी सब कवियां. गुड गुड गुड, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. आस्क योरसेल्फ, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. आस्क योरसेल्फ, विल यू बी एबल टू एक्सेलरेट योर ग्रोथ विद दीज चैलेंजेस? ये एक सोचने वाली बात है. इस पर काम करिए, जो भी आपका चैलेंज है उस पर काम करिए, जिस तरह से कर सकते हैं करिए. यूट्यूब वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, कहीं पे ढूंढिए कहाँ पे क्या उससे रिलेटेड मटेरियल मिल सकता है. इतनी बुक्स अवेलेबल हैं बाजार में, हर चीज पर बुक्स अवेलेबल है, हर चीज पे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है. मुफ्त का ज्ञान अंधाधुंध मिल रहा है बाजार में. पेड ज्ञान, सस्ता ज्ञान अंधाधुंध मिल रहा है बाजार में. महंगा ज्ञान अंधाधुंध मिल रहा है बाजार में. जो भी हम करना चाहते हैं वो करें, लेकिन करें, काम करें. जो चीज हमें ग्रो करने में मदद नहीं कर रही, कहीं ना कहीं हमें नीचे खींच रही है, उस पर हम काम करें. क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये कहता है कि जो चीज हमें नीचे खींच रही है हमें उसका पता होना चाहिए और हमें उस पर काम करने की रेसिपी और माइंडसेट भी होना चाहिए. सहमत या असहमत? ओके. क्योंकि अधिकांश वीडियोस ऑफ हैं, तो मेरे पास आपके जवाब जानने का सिर्फ एक ही जरिया है, या तो आप बोलें या चैट बॉक्स में टाइप कर दें. ओके. डू यू हैव एनी विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years? ये एक सोचने वाली बात है, अपने आप से पूछने वाली बात है. अभी इस वर्कशॉप के दौरान नहीं, क्योंकि इसमें लंबा समय लगेगा. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप सोचिए और बनाइए विजन 5 सालों का. अपना 5 सालों का विजन बनाइए और देखिए उसे हम कैसे हासिल करेंगे. अपने आप अंदर से क्वेश्चंस और अपने आप अंदर से जवाब निकलने शुरू हो जाएंगे अगर एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो. Start moving from compulsive and reactive living to conscious and responsive living. Take responsibility of your life. क्यों? कैसे?
Because if you take responsibility of your life, you will be committed to learn the skills need to be learned. ये 4 पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं आपके लिए, इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं. It will help you. ये 4 पॉइंट्स हैं. You will be committed to learn the skills need to be learned. You will practice the behavior which is required to be practiced. वो behavior practice करेंगे which is required to be practiced. You will focus upon the things which will take you towards achieving success. And you will always focus upon the solutions, not on excuses. ये 4 चीजें हैं. अगर हम जिंदगी में अपने जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम वो स्किल्स सीखेंगे, हम वो बिहेवियर प्रैक्टिस करेंगे, हम उन चीजों पर फोकस करेंगे जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाएं, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, एक्सक्यूजेस ओरिएंटेड नहीं होंगे. राइट. सो दीज आर द 3 फैसेट्स ऑफ सक्सेस ट्रायंगल. इनको मैं 3 फैसेट्स कहता हूं. ये वो 3 फैसेट्स हैं जिस पर बिलियनियर्स फोकस करते हैं. एक, गोल्स ओरिएंटेशन का होना. दूसरा, अपने समय का सही इस्तेमाल करना अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए. और तीसरा, अपने कम्युनिकेशंस पे काम करना. और एक 4th फैसेट भी है इसका, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कहेंगे ट्रायंगल का 4था फैसेट कहाँ से आ गया, और वो कहाँ लगाओगे यहाँ पे. वही करना था तो फिर सीधे ट्रायंगल ना बोलते, स्क्वायर बोलते. नो, इसमें भी है. और वो 4था फैसेट है ये माइंडसेट. People say that the exponential growth is the outcome of winning systems and processes. I always say that the exponential growth is outcome of that killer mindset to put those winning systems and processes at work. खाली winning system and process से growth नहीं आती, वो mindset चाहिए. सोच के देखिए अपने आप को. आप सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सारे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, राइट. जितना भी डिग्री में हो, कोई कम कोई ज्यादा, जितना भी डिग्री में, आप सारे लोग सक्सेसफुल हैं. सोच के देखिए जितनी आपको सक्सेस मिली है वो माइंडसेट की वजह से मिली. नो डाउट सिस्टम एंड प्रोसेस का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उन सिस्टम एंड प्रोसेस का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये दिमाग की बत्ती जब जली तब हुआ वो इस्तेमाल. सो ये हैं 4 फैसेट्स, 3 फैसेट्स और एक उनमें सामंजस्य बिठाने वाला माइंडसेट. एनी डिस्कशंस ऑन दिस पॉइंट? नो, इम्तियाज भाई? ग्रेट. सो अब इस चीज को हम हासिल कैसे करेंगे? जैसा अतुल भाई ने बोला कि हमने क्रिएट किया एक फ्रेमवर्क, गॉप्टा एनएलपी फ्रेमवर्क. इट इज द फ्यूजन ऑफ 3 कॉन्सेप्ट्स. वन इज गॉप्टा विच इज एन अल्टीमेट ग्रोथ मॉडल, सेकंड इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एंड थर्ड इज मास इन्फ्लुएंसिंग फ्रेमवर्क. गॉप्टा फ्रेमवर्क हमारी बुक में आया था सबसे पहले. मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी है और कॉपीराइट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आज. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तो विशाल है. जब मैं सीख रहा था अपने मेंटर से तो 3 साल तक मैंने 1-to-1 मेंटरिंग ली थी उनसे, 300 घंटे की. तो उसे तो खैर शेयर नहीं किया जा सकता 1 घंटे में, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट्स में जरूर शेयर करूंगा और एक एक्टिविटी भी कराऊंगा जो कि एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट करेगी सबकी लाइफ में. और तीसरा है मास इन्फ्लुएंसिंग फ्रेमवर्क. इसको भी मैं जिक्र करूंगा कि मास इन्फ्लुएंसिंग फ्रेमवर्क क्या है फॉर एनरिचिंग कम्युनिकेशंस. और अगर समय मिला तो इसका कोई एक पॉइंट उठा करके उसे डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन टाइमिंग्स. तो बाय ऑल मीन्स वी विल कंक्लूड एट 9:30. सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 9:15 तक मैं अपना फिनिश कर दूं, सो दैट 10-15 मिनट आपको मिले क्वेश्चन आंसर के लिए. गॉप्टा क्या है? गॉप्टा इज गोल्स ओरिएंटेड पॉजिटिव थिंकिंग एंड एक्शंस. 3 एलिमेंट्स हैं इसमें. बचपन से मैं सोचता था ऐसा क्या है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा मीडियोकर रह जाते हैं, क्या है डिफरेंस उनमें? तो देखा हजारों चीजें बताई गई हैं सक्सेस के लिए. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीजें बताई गई. आई आइडेंटिफाइड 3 थिंग्स ऑन विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी इवन 99%. उन्हें याद रखने में आसानी हो इसलिए ये एक्रोनिम बना दिया, एंड दैट एक्रोनिम इज गॉप्टा. आप इसे कह सकते हैं कि ये तो पुरानी चीजें हैं, लेकिन ये फ्रेमवर्क डिफरेंट है क्योंकि मेरी इनकी अपनी डेफिनेशंस है, राइट. और वो डेफिनेशंस क्या हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूं. If you are goals oriented, your every thought, every action, every time utilization pattern is towards achieving your goals. And every moment you start asking a question to yourself, whatever I am doing right now, whether it is most appropriate usage of my time or not. इस वक्त जो मैं कर रहा हूं वो मेरे समय का सही इस्तेमाल है कि नहीं. If you possess positive thinking,
अपार्ट फ्रॉम ओल्ड डेफिनेशन की इंपावरिंग बिलीव्स होने चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, इंपावरिंग वैल्यूज, हैबिट्स होना चाहिए, वो तो है ही। मैं कहता हूं आप दूसरों को ये बताने की इजाजत नहीं देंगे कि क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं। यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इमेज, यू डोंट अलाउ एनीबॉडी एल्स टू टेल यू व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, व्हाट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग। ये एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है। अभी मैं एक कहानी शेयर करूंगा आपसे 2 मिनट की, तो आपको सुन के लगेगा कि ये सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट ना कर पाने की वजह से लोगों के साथ क्या क्या होता है। और तीसरा जो सबसे ड्रास्टिक चेंज है वो है एक्शंस की डेफिनेशन में। एक्शन की पुरानी डेफिनेशन है लगे रहो जब तक सफलता ना मिल जाए। मैं कहता हूं लगे तो आप रहोगे जो काम आप कर रहे हो। अगर आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, टीचर पढ़ाएगा ही, वकील वकालत करेगा ही, जो जो काम कर रहा है वो करेगा ही। पॉइंट इज कॉप्टा के अंदर एक्शन की डेफिनेशन है खुद पर काम करना इन 5 डिस्टिंक्ट एरियाज। और वो कौन से 5 एरियाज हैं? गोल्स ओरिएंटेड स्किल्स हासिल करना, जो भी स्किल्स हमें गोल्स की तरफ ले जाएं वो हासिल करना। गोल्स ओरिएंटेड हैबिट्स विकसित करना, कौन सी हैबिट्स मुझे गोल्स की तरफ ले जाएंगी। गोल्स ओरिएंटेड वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम होना चाहिए हमारा। वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम हमारा गोल्स की तरफ ले जाने वाला नहीं होता, नीचे ड्रैग करने वाला होता है। और हम सोचते हैं कि हमारा हर सपना साकार हो जाए, रॉकेट हमारा जाके सीधे लैंड कर जाए, रहे हम भले कंफर्ट जोन में। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, इच्छा है ना हमारी, जो भी हासिल करना है वो हासिल होगा ही। क्यों? क्योंकि किताबों में लिखा जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, कतई नहीं होगा। किसी किताब में नहीं लिखा जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, बिना किए कुछ, बिना सही वैल्यू बिलीफ सिस्टम के, बिना सही एक्शंस लिए। किसी किताब में नहीं लिखा ये। सिर्फ ये लिखा है कि हाँ अगर सही चीजें करोगे तो जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, तब यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। बिना किए कुछ हो जाएगा, इम्पॉसिबल। भगवान की सृष्टि में ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो सब उलट पलट हो जाता, हम कुछ भी सोचने लगते और कुछ भी हासिल करने लगते। गोल्स ओरिएंटेड रिलेशनशिप नर्चरिंग करना। एंड 5वां, गोल्स ओरिएंटेड टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स। ये 5 चीजें हैं। अगर ये 5 चीजें हम अपने ऊपर काम करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि यस, हमने एक्शन लिया। गोल्स ओरिएंटेड स्किल हासिल की, गोल्स ओरिएंटेड हैबिट्स विकसित की, गोल्स ओरिएंटेड वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम हासिल किया, गोल्स ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स बनाई, और गोल्स ओरिएंटेड टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स बनाए। सो अब आते हैं हम लोग एक एक्टिविटी पर, जिससे हमें पता चले कि एनएलपी क्या होती है। गॉप्टा फ्रेमवर्क मैंने शेयर किया, एनएलपी की शेयर करेंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप लोगों को सब बड़ा मजा आने वाला है। उसके लिए हमें ब्रेकआउट रूम्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं वो उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ब्रेकआउट रूम्स में जब आप जाएंगे तो मैक्सिमम 4 मिनट में वापस आ जाइएगा, वहां पे अंदर अपना इंट्रोडक्शन मत देने लगेगा। ये हमेशा ऐसा होता है कि लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि आपने 2 ही मिनट में बंद कर दिया। ऐसा होता नहीं है, मैं हमेशा 4 मिनट 4.5 मिनट में ही बंद करता हूँ। हमें अंदर करना क्या है? हमें अंदर 4 काम करने हैं 1-1 मिनट। लेकिन वो जो करना है उससे पहले मैं उसका थीम सेट कर दूं कि वो क्यों है। कुछ वक्त पहले मैंने एक गैरी कास्परो साहब का इंटरव्यू देखा। गैरी कास्परो साहब सब जानते होंगे, चेस चैंपियन, अभी तक के महानतम हिस्ट्री के चेस चैंपियन। तो गैरी कास्परो साहब से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, इतने बड़े चैंपियन आप। तो अब मेरे कान सुनने को तैयार हो गए कि अब ये बोलेगा कि मैं हर हारे हुए गेम की बहुत माइन्यूट एनालिसिस करता था, जो गेम एक बार हार गया, जो गलती कर दी दोबारा कभी नहीं करता था। मैंने सोचा अब ये बोलेगा। उसने बोला कुछ और, मैं चौंका। उसने बोला कि मैं अपने हर जीते हुए गेम की बड़ी बारीक एनालिसिस करता था, बड़ी माइन्यूट एनालिसिस करता था। अब मैं चौंका, इंटरव्यूअर भी चौंका। फ्रेंड्स, जो लोग अगर यहाँ पे नहीं है वीडियो ऑफ वाले, तो वो उनका अटेंशन यहाँ पर ले आए, बिकॉज अगले 2 मिनट में कुछ खास होने वाला है। सो मैं चौंका, वो इंटरव्यूअर भी चौंका। उसने पूछा क्या आप हारे हुए गेम से सबक नहीं लेते थे? क्या आप गलतियों से सबक नहीं लेते थे? नो 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 नो, नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। द फैक्ट इज दैट आई नो दैट आई एम ए चैंपियन प्लेयर। एक दिन एक गलती कर दी, हार गया, उस गलती को दोबारा नहीं करूंगा, चैप्टर इज ओवर। लेकिन आगे जो उसने कहा वो इंपॉर्टेंट है। He said, but I know that I am a champion player because of those games which I won. So I must know what I did in those games or what I do in those games that I could overpower an equally capable opponent. ऐसा क्या करता हूं जीते हुए गेम्स में कि मैं अपने टक्कर के खिलाड़ी को हरा देता हूं। उससे कोई गली मोहल्ले का खेलने तो आएगा नहीं वर्ल्ड चैंपियन से। टक्कर का खिलाड़ी होगा, आधे % का 1% का फर्क होगा, मैं उसे हरा देता हूं, बार बार हरा देता हूं।
ऐसा मैं उन गेम्स में क्या करता हूँ, आई मस्ट नो दैट रेसिपी। और हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, मेरे अंदर ये कमी है, 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 और ये भी कमी है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस वीकनेस पे काम कर रहा हूँ, और जब इस वीकनेस पे काम हो जाएगा तब एक दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इट हैपेंस और नॉट? हमारी प्रोग्रामिंग है अपनी एक्सीलेंस ना देखने की, हमारी प्रोग्रामिंग है अपनी वीकनेसेस देखने की, बचपन से। और एंड फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने अगर यहाँ लेडीज हैं तो मुझे पता नहीं, क्योंकि नाम से पता नहीं चलता। सो जब तक हम जिएंगे हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। 800 करोड़ लोगों की दुनिया में अभी तक तो एक भी व्यक्ति ऐसा पाया नहीं गया जिसमें कमियां ना हो। तो अगर मेरे अंदर और आपके अंदर 4, 6 या 7 या 10, 20 और 40 कमियां हैं तो क्या फर्क पड़ता है? द पॉइंट इज दैट एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज सक्सेसफुल बिकॉज ही फोकसेस ऑन हिज स्ट्रेंथ, बिकॉज ही फोकसेस ऑन हिज एक्सीलेंस। और आप अपने आप को देखिए, आप भी जिंदगी में किन्हीं स्ट्रेंथ, किन्हीं एक्सीलेंस की वजह से उतना सक्सेसफुल हैं जितना आज है। सहमत या असहमत? ऐसा नहीं है कि आप में कमियां नहीं होंगी, और ऐसा नहीं है कि मुझ में कमियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड जिनको हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल समझते हैं उनमें कमियां नहीं होंगी, सब में होती हैं। लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ्स होती हैं, और वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो फोकस करते हैं उन स्ट्रेंथ्स पर, उन एक्सीलेंस पे जो उनके अंदर है। कमियों का रोना नहीं रोते रहते। सो व्हाट वी विल डू टुडे इज, हम अभी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, 2 लोग होंगे ब्रेकआउट रूम में, और वहां पे हम 4 पार्ट में इस एक्टिविटी को करेंगे। पहला मिनट, जो भी आप में, जैसे मान लीजिए 2 लोग गए अंदर कमरे में, जैसे मान लीजिए अतुल पुरी एक नाम और एक हैप्पीनेस गुरु, तो ए पहले है, तो ए जो अल्फाबेट में पहले वो ए हो गया और जो दूसरा है वो बी हो गया। तो पहले ए क्या करेगा, जो नंबर 1 है, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना, पहले तुम टाइम नहीं खराब करना उसमें। जो पहला व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपनी एक्सीलेंस, अपनी स्ट्रेंथ बताएगा। ये नहीं सोचेगा कि दूसरा मुझे घमंडी समझेगा, नो, हम अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं, अपनी एक्सीलेंस बता रहे हैं, घमंड नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ बतानी है तो मैं आपसे बोलूंगा कि सिंप्लिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज माय स्ट्रॉन्ग होल्ड। मैं एक कठिन से कठिन चीज को आसान बना के पेश कर दूंगा आपके सामने, जो आप समझ भी सकें और अपनी जिंदगी में अपना भी सकें। तो क्या ये घमंड है? तो अपनी स्ट्रेंथ का एहसास है। चूंकि एहसास है तो मैंने अपने सारा ट्रेनिंग का जितना भी मेरा ग्लोबल एम्पायर है वो इस एक स्ट्रेंथ के इर्द गिर्द बना रखा है कि सिंप्लिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज माय स्ट्रॉन्ग होल्ड, राइट? तो इस तरह से आप देखिए कि जो भी आप सक्सेसफुल हैं वो किन स्ट्रेंथ, किन एक्सीलेंस की वजह से हैं। 1 या 2 अगले 1 मिनट में उनके साथ शेयर कर दीजिए दूसरे व्यक्ति के साथ। फिर दूसरा व्यक्ति करेगा, 1 मिनट तक वो अपने बारे में बताएगा। 2 पार्ट हो गए। तीसरा, अब जो पहला व्यक्ति है उसने दोनों लोगों ने एक दूसरे को सुन लिया, अब आप दूसरे को प्रेज करिए। दूसरे का आपने सुन लिया है, अब आप दूसरे की स्ट्रेंथ बताइए, और फिर दूसरा व्यक्ति पहले की स्ट्रेंथ बताए। यानी कि पहले राउंड में अपनी अपनी बतानी है और दूसरे राउंड में दूसरे व्यक्ति की बतानी है। बिल्कुल सिंपल है। एनी कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इस 1-2 मिनट में दूसरे व्यक्ति की वो स्ट्रेंथ जो नहीं बताई वो कैसे समझेंगे? नहीं, जो बताई उसी से समझ में आएगा आपको, जो बताई उसी से समझ में आ जाएगा। उसने अगर 2 बताई हैं, आपको याद होगा, उसके अलावा भी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि सिंप्लिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज माय स्ट्रॉन्ग होल्ड। सो आप, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए मैं आपको पहले से नहीं जानता होता, अभी आपने कोई स्ट्रेंथ शेयर नहीं की, लेकिन स्टिल मैं एक निकाल सकता हूं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन पूछने का करेज है, राइट? इस एक चीज से 2 चीजें निकाल ली, तो ये क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है, क्यूरियोसिटी है। बाकी लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने पूछा, राइट? तो दूसरे से बात करेंगे जब आप 1 मिनट, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ समझ आएगा। उससे हमारा दिमाग का एंटीना खड़ा होगा कि जब दूसरा व्यक्ति सामने बोलता है तो हम उस पर फोकस किस तरह करते हैं, कैसे उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। कुछ तो वो बताएगा और कुछ हम निकाल लेंगे जो हम कर पाए। अदरवाइज उसने खुद तो बताया ही ना, 1 मिनट अपने बारे में 2-3 चीजें बोल रहा होगा, तो हम उसी को रिपीट कर सकते, राइट? सो ब्रेकआउट रूम बना दें अतुल भाई, सब में 2-2 लोगों को डाल दें, मुझे छोड़ दें। कर देते हैं सर। और 4 मिनट बाद इसे बंद कर दीजिएगा।
अभी 49 हुआ है, मैक्सिमम 55 पे बंद कर दीजिएगा, 5 या 6 मिनट दे दीजिए, क्योंकि अंदर कई बार लोगों को मजा आने लगता है तो फिर वो जल्दी निकलना नहीं चाहते। 50 तो हो भी गया, 55 पे बंद कर देंगे। ठीक है, एक साहब हैं जो आपको मेरे ख्याल किसी एक में जाना पड़ेगा। चला जाऊंगा। जय सर। इम्तियाज भाई आप जाएं। आहूजा साहब आप भी जाएं। कहाँ जाऊं? रूम आपने नंबर कहीं 4। अरे कैसे जाऊं मैं? आप ऑलरेडी आपके पास आया होगा ना लिंक। हाँ हाँ, हो गया। जाओ। वेल ड्रेस्ड हो गया, वेल ड्रेस हो गया। बाकी अकाउंटिंग में यस, कैलकुलेशन जो है वो भी मोस्टली अभी तक तो ठीक चल रही है। Okay. या उसमें अभी जो चैलेंजेस ने थोड़ा आगे पीछे किया है, फिर बाद में आपकी बात रहेगी तो हम देखेंगे उसको कॉन्कर कैसे करना है। Okay, आपका हो गया। मेरा जैसे मैंने पहले ही बताया, टू सेव टाइम, सिंप्लिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज माय स्ट्रॉन्ग होल्ड, राइट? एंड आई थिंक अबाउट हाउ आई कैन हेल्प अदर पर्सन टू ग्रो, राइट? तो इंटेंशन का खेल है जो दूसरों में और मुझ में फर्क पैदा करता है। दैट्स इट। मैं शॉर्ट रखूंगा सो दैट टाइम लिमिटेड है हमारा, 2 मिनट ही बचे। नाउ यू कैन, पहला राउंड हो गया, अब आप मेरे बारे में बात कर सकते हैं और फिर मैं आपके बारे में बात करूंगा जो मैंने आपकी स्ट्रेंथ सुनी है।
हाँ जी, बाकी लोग भी लौट आए या गए ही नहीं थे? आप म्यूटेड हैं सर। केवल 2 लोग नहीं गए थे, 3 लोग, बाकी सब गए थे। ओके ओके ओके, तो वो होंगे नहीं अब। हाँ, तो काजल किचन में कुछ खास बना रही हैं, ओके ओके, बाकी मयूर जो है उनका वो लापता है। वो शहर बता दें कौन सा है, हम वहाँ खाने के लिए पहुंच जाएंगे। हम्म, ओके एनीवेज, तो वापस आ रहे होंगे आई बिलीव 19 सेकेंड, 18, 17, 16, काजल मुंबई। मुंबई से। तो आज तो पहुंचना मुश्किल होगा। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस एक्टिविटी के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा इससे पहले कि मैं इसे डीब्रीफ करूं कि क्या हुआ? कोई बताना चाहेगा कि उसने क्या फील किया, क्या हुआ अंदर? Okay, this is Venugopalan here. Let me share my, feel. It is a good exercise of knowing each other and a pleasant partner who, was very clear in his communication. And he also could identify some aspects of mine which I really didn't, realize myself. So that was too good of a this one, and we could share a little bit of our personal experiences, our personal background as well within these 3-4 minutes, right? So it's a very relishing conversation we had. Okay, that's great. Yeah. Okay, anyone else? इससे पहले कि मैं इसे डीब्रीफ करूं, वन मोर प्लीज, अगर कोई कर सकता है। ओके, आई प्रोसीड बिकॉज टाइम लिमिटेड है। देखिए, एक चीज महसूस करिए, हमने क्या किया, हमने एक मेंटल मसल बिल्डिंग करी है आज। मैं एक मिनट म्यूट कर दूं सबको। हमने एक मेंटल मसल बिल्डिंग करी है आज, अपने भीतर अपनी एक्सीलेंस और स्ट्रेंथ देखने की, और जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी भी एक्सीलेंस और स्ट्रेंथ देखने की। जब हमने देखने का एंटीना खड़ा किया अपना 1 मिनट तक, तो हम देख पाए, जो दूसरे ने नहीं कहा वो भी देख पाए। क्यों? क्योंकि हमारा एंटीना खड़ा था कि हमें देखनी है दूसरे की स्ट्रेंथ। क्या जीवन में हर वक्त हम अपनी स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस देखने का एंटीना खड़ा रखते हैं? क्या जीवन में हर वक्त जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस देखने का एंटीना खड़ा करते हैं? इट इज ए क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। हमने एक ये मसल बिल्डिंग करी है, और ये मसल बिल्डिंग रातों रात नहीं हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट मुझे कहे कि कंधे बनाने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और मैं घर आऊं और 100 बार करूं, तो वो नहीं बनेंगे। 3-4 महीने 6 महीने में बनेंगे। लेकिन जब 3-4-6 महीने में यहाँ डोले शोले दिखने लगेंगे, तो वो क्या मैं कहीं बाजार से खरीद के लाया 50,000 kgs या 1 लाख रुपए किलो? नहीं, वो वहीं थे, डॉर्मेंट थे, मैंने उन्हें जगाया। तो हम इस मेंटल मसल को बिल्ड कर रहे हैं जो डॉर्मेंट है, बचपन से हमारी जगाई नहीं गई। हमारी कौन सी मसल जगाई गई है? कमियां देखो, अपनी भी दूसरे की भी। हम अगर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एक्सीलेंस देखेंगे और उन पर फोकस करेंगे, और दूसरे की स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस देखेंगे, और ये पाएंगे कि वो हमारे अंदर भी हैं कहीं ना कहीं। आप मार्क कीजिएगा, आपका जो भी पार्टनर होगा उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी वो किसी ना किसी डिग्री में आपके अंदर भी होगी। तो जब आप ये चीज देखना शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आई एम ए पावर हाउस ऑफ एक्सीलेंस, आई एम ए पावर हाउस ऑफ स्ट्रेंथ, और उससे आपको बहुत इंपावरमेंट मिलेगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? 100%। वाह, क्या बात है, थैंक यू जी, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव ओनली 20 मिनट्स मोर। तो अच्छा, हाँ, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपसे, एक स्टोरी शेयर करने के लिए मैंने कहा था, राइट? के बारे में और उसके बारे में एक स्टोरी शेयर मैंने बताया था। एक सेकंड, म्यूट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? एक सेकंड, मैं सबको म्यूट करना पड़ेगा, कर दिया। ओके, एक स्टोरी मुझे याद है, 2017 की बात है। हम गुजरात गए थे, एक शहर में वर्कशॉप कर रहे थे। तो फिजिकल वर्ल्ड में मॉर्निंग में जल्दी पहुंच जाना होता था। तो देखा सुबह एक बच्ची बैठी हुई है वहां पे, और उससे हमने पूछा बड़े प्रेम से, जैसे बच्चों से बात करते हैं, बेटा किस क्लास में पढ़ते हो?
तो बोले हमें पोस्ट ग्रेजुएट। और मैं चौंका, मुझे लगा था कि 8वीं 9वीं क्लास में होगी। तो मैंने देखा बच्ची सी लग रही थी एकदम। तो बोली आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। खैर दिन भर वर्कशॉप हुआ, 8-9 घंटे चला। शाम को जब हमारी टीम वीडियो टेस्टिमोनियल्स लेने के लिए गई सबके पास, तो वो लड़की रुआसी हो गई। एंड शी सेड सर जिंदगी में आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं कहा अच्छा कैसे? तो शी सेड सर मुझे हमेशा ही बताया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारी तो शादी भी नहीं होगी। मैं नाटी हूँ, 4.5 फुट की थी वो। बोली मैं नाटी हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं तुम्हारी तो शादी भी नहीं होगी और मैं टीचर बनना चाहती हूँ। सब कहते हैं कि तुम्हें स्वीकार कौन करेगा एज टीचर। सच बात है, जिसको मैं ही बच्चा समझ रहा था, अगर कोई मुझसे कहे टीचर है तो उसे कौन एक्सेप्ट करेगा टीचर के तौर पे। तो शी सेड लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं कहा अच्छा, मुझे लगा कि भाई 35-40 लोग हैं, दूसरों का भी टेस्टिमोनियल लेना है, आगे बढ़ो। 8 घंटे मोटिवेशन सुनने के बाद कोई भी यही बोलेगा, और हम आगे बढ़ गए। लेकिन फिर मैंने देखा कि 1-2 महीने तक वो मुझे फॉलो करती है, मेरे सारे पोस्ट, सारे टेस्ट। मैं उस शहर में ही पहली बार गया था, अननोन थी वो लड़की मेरे लिए, पहले से जानता नहीं था, किसी को नहीं जानता था इनफैक्ट उस शहर में। तो मैंने देखा कि वो फॉलो करती है, पोस्ट अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है, शेयर करती है। तो वन फाइन मॉर्निंग मैंने उससे पूछा बेटा ये बताओ तुमने उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, कुछ फायदा भी हुआ जिंदगी में? तो शी सेड यस दैट डे चेंज माय लाइफ। मैंने कहा कैसे? बोली जब मैं उस कमरे से बाहर निकली तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके पहले मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे ये बताया गया था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरी सेल्फ इमेज बहुत पुअर थी। लेकिन उस दिन मैंने खुद से पूछना शुरू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, और उसके बाद ए होल न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज स्टार्टेड ओपनिंग बिफोर मी। मैं टीचर बनना चाहती थी, मैं टीचर ही बनी। मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोल दिया, आज मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, दूसरे टीचर्स को रोजगार भी देती हूँ। एंड कैन यू बिलीव इट, जब मैं ये स्टोरी आपको सुनाता हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं याद करके इस स्टोरी को। क्यों? क्योंकि वो लड़की वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए बैठी हुई थी, और उसने अपने दिमाग का एंटीना खड़ा किया। एनएलपी क्या है? NLP is the study of how we use the language of the mind to achieve our desired outcomes. It is the study of excellence. It is the study of what works and what works well, especially for you. NLP उसकी स्टडी है, राइट? सो अब हम बात करते हैं NLP के बारे में। लंबी बात चूंकि नहीं कर सकते हैं, छोटी बात करते हैं। सो NLP is the study of how we use the language of the mind to achieve our desired outcomes. It widens your map of the world. ये आपका दायरा, सोचने का दायरा बढ़ा देती है, so that you can perceive more choices available before you without changing the reality. ये इंपॉर्टेंट है, without changing the reality. उस लड़की के साथ क्या हुआ? उसका एंटीना बड़ा हो गया, उसने मोर चॉइसेस परसीव करनी शुरू कर दी अपनी जिंदगी में। जो उसका दायरा बंद था कि नहीं मैं तो बस क्या कर सकती हूँ, क्या मुझे कौन सुनेगा, टीचर तो मैं बन ही नहीं सकती। पता नहीं क्यों, क्योंकि लोगों ने उसकी लेग पुलिंग कर दी थी। हमने अपना सेल्फ इमेज दूसरों को खराब करने की इजाजत दी हुई है, लोगों को लेग पुलिंग करने की इजाजत दी हुई है। जब जो चाहता है, जिसकी मर्जी। लोग तो हमारी चारों टांगे खींचने को तैयार बैठे हैं, 2 फिजिकल और 2 मेंटल, सब तैयार बैठे हैं, अनजाने में ही सही। उनमें कई बार हमारे अपने वेल विशर्स भी होते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो लास्ट लाइन है, विदाउट चेंजिंग द रियलिटी। वो लड़की 5.25 फुट की नहीं बन गई थी मेरे सेशन के बाद, वो वहीं 4.5 फुट की थी। वो लड़की कोई फेयर एंड लवली लगा के ऑस्ट्रेलियन नहीं बन गई थी, वो वही इंडियन थी, उसका वही स्किन कलर रहा, सेम चीज। लेकिन उसका मैप ऑफ द वर्ल्ड बड़ा हो गया, उसका सोचने का दायरा बड़ा हो गया। NLP is the study of excellence. It is the study of what works and what works well, especially for you. So that's why हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग काम किस तरीके से करता है और दूसरे व्यक्ति का दिमाग काम किस तरीके से करता है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। सो अनलॉक योर एक्सीलेंस, जो हमने ये एक्टिविटी करी है, ये हमने यहाँ पे डाली हुई थी। तो अनलॉक योर एक्सीलेंस, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट टू अनलॉक योर एक्सीलेंस। जो हमारे अंदर छुपी हुई एक्सीलेंस है उसे हम अनलॉक करें। क्यों हम उसे हिडन रहने दें? क्यों हम अंडर परफॉर्मर बने रहें इन कंपैरिजन टू अवर ओन ट्रू पोटेंशियल? हमारा क्षमता है इस लेवल पे खेलने की, हम इस लेवल पे क्यों खेल रहे हैं? देयर इज अ डिफरेंस। जब हम इसे अनलॉक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते? एंड द थर्ड विंग इज ऑफ Gopta NLP framework is mass influencing framework. Influencing communication क्यों चाहिए हमें? चाहिए ही क्यों influencing communications? ये एक सोचने वाली बात है, अपने आप से पूछने वाली बात है।
एनीवन हु कैन टेल कि क्यों चाहिए हमें इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशंस? Because you want the result to be what you want. That's it. वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया आंसर है, क्लैपिंग्स फॉर यू। हम सब चाहते हैं जिससे भी बात करें बातचीत हमारे हिसाब से आगे बढ़े, राइट? लेकिन हम अपने बात को दूसरे के दिमाग में ठीक से लैंड नहीं करा पाते, जिसकी वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रिश्तों में दरारें आती हैं। चाहे हम अपने स्पाउस से बात कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, पेरेंट्स से, इन लॉज से बात कर रहे हो, या प्रोफेशनल लाइफ में अपने बॉस से, कुलीग से, सबऑर्डिनेट से, बायर से, सप्लायर से, प्रोस्पेक्ट से, क्लाइंट से बातें कर रहे हो, रिश्तों में दरारें आती हैं। दैट्स व्हाई इनरिचिंग कम्युनिकेशंस, इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशंस आर एसेंशियल। But ये स्पाउस के साथ काम करती है? बिल्कुल काम करती है हुजूर। बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल कभी काम नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं। और मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे स्पाउस वर्ड यूज हुआ है, वाइफ या हस्बैंड नहीं। तो मजेदार चीज ये है कि हम भी स्पाउस ही हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। अंदर की बात तो हम सब जानते हैं। हाँ, अंदर की बात तो सब जानते हैं, वो तो फीकी हंसी सभी के चेहरे पर रहती है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम एक कन्वर्सेशन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें, राइट? So I have identified these 11 pillars of mass influencing framework. 11 पिलर्स क्या हैं जिनको मैं निचिंग कम्युनिकेशन के 11 पिलर कहता हूँ? सेंसरी एक्विटी, द आर्ट ऑफ कैलिब्रेशन। हम दूसरे को देख करके ये पहचान सकें कि दूसरा जो बोल रहा है और जो सोच रहा है उसके बीच में सामंजस्य है कि नहीं, उसके चेहरे मेरे को, उसके बातचीत के तरीके को देख करके। रैपो वो नहीं है यार क्या स्मार्ट लग रहे हो, क्या सूट पहना, अरे क्या गॉर्जियस लग रही हो यार, क्या साड़ी, क्या झुमके, क्या सूट पहना है, ना ना ना, दैट इज कन्वेंशनल आइस ब्रेकिंग, राइट? किसी से आप मिलते हैं, Repo is at the level of subconscious mind. When you connect at the level of subconscious mind, when you connect at the level of internal representation system, दूसरा व्यक्ति सोचता किस तरीके से है, जब आप उस लेवल पे कनेक्ट करते हैं उसके साथ में, तब रैपो बिल्ड होती है, तब आप बातचीत को एक सही तरीके से, एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। सेटिंग द फ्रेम्स, जैसे जब आप यहाँ पर आए तो मैंने एक फ्रेम सेट किया, यू आर द आउटकम ऑफ योर चॉइसेस। उसकी वजह से शायद आपका प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ गया, तो आपका जो क्वालिटी ऑफ इनपुट टेकिंग है और क्वांटिटी ऑफ इनपुट टेकिंग है मे बी बढ़ गया हो उसकी वजह से, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। सो दिस इज द पावर ऑफ सेटिंग द फ्रेम्स, बिल्डिंग एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एट अनकॉन्शियस लेवल्स टू बिकम अ मास्टर इन्फ्लुएंसर। ऑपरेटिंग फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस, आप साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस से तब ऑपरेट करेंगे जब आप अंदर से एक्सीलेंस फील करेंगे। अंदर से एक्सीलेंस आप तब फील करेंगे जब आपने उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक्सीलेंट बनने के लिए काम किया हुआ होगा, ऐसे नहीं करेंगे। और ये कॉन्टेक्चुअल होती है, यूनिवर्सल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं गॉप्टा एनएलपी फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं तो मैं आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने काम किया है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप मुझे हवाई जहाज चलाने बैठा दीजिए, आई विल नॉट ऑपरेट फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस, मैं चला ही नहीं पाऊंगा। आप मुझे ट्रक चलाने बैठा दीजिए, मैं चला तो दूंगा क्योंकि कार चलानी आती है, बट आई विल नॉट ड्राइव फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस, राइट? तो ये साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस से ऑपरेट करना कॉन्टेक्चुअल होता है, यूनिवर्सल नहीं है कि आप हमेशा जो चीज आती है आपको सिर्फ उसी में कर सकते हैं। बट पॉइंट इज कि जिस चीज में आपको चाहिए साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस, भाला फेंकना है आपको, तो साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस से ऑपरेट करना है भाला फेंकने की। वो तब आप ऑपरेट कर पाएंगे जब भाला फेंकने की प्रैक्टिस करी हुई होगी पीछे, और आपको पता होगा कि अगर 80 मीटर फेंकना होता है तो मैं 80 मीटर फेंक लेता हूं। अगर आप जहां पर रिकॉर्ड बनता है 80 मीटर पे, अगर आप 60 मीटर फेंकते हैं, 62 मीटर फेंकते हैं, तो आप साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस से ऑपरेट नहीं करेंगे, फिर आप साइकोलॉजी ऑफ डिफीट से ऑपरेट करेंगे। क्योंकि आपको पता है मैं जाऊंगा कंपटीशन में, भाग लूंगा, मे बी बाई चांस 62 की बजाय 65 मीटर थ्रो कर दूं, भाग लेना है बस, आप भाग लेने जाएंगे। यू विल नॉट बी ऑपरेटिंग फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस। साइकोलॉजी ऑफ एक्सीलेंस से तब ऑपरेट करेंगे जब आपने 80 मीटर फेंकने की प्रैक्टिस की होगी, राइट? Neurological levels of change. It is a very advanced model of communication and change work by Robert Dilts. Having congruence among values, identity and purpose. And PRO model of thinking. अगर टाइम मिला 5 मिनट का तो इसको डिस्कस भी करेंगे. It's a very interesting model, PRO model of thinking. Clean language. Clean language is asking questions without any judgment, without any opinion, without any bias. दूसरे के व्यक्ति के अंदर से रियलिटी को निकाल लेना, सही क्वेश्चंस पूछ करके, क्लीन, कोई बायस नहीं, कोई जजमेंट नहीं।
मेटाफर्स, द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मेटाफर्स की भाषा समझता है, इमेजेस की भाषा समझता है। जैसे मैंने एक मेटाफर आपके सामने पेश किया था, कंफर्ट जोन का सीमेंट, राइट? तो अगर उसी चीज को मैं वैसे ही बोलता तो शायद वो बात उतना दिमाग में नहीं घुसती जितना उस एक इमेज की वजह से घुसी, कि वो सीमेंट में अगर आप पैर डाल के खड़े रहोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जम जाएगा वो सीमेंट और उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। फिर एक रॉकेट की एक इमेज बनाई, मेटाफर क्रिएट किया, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मेटाफर्स की भाषा समझता है। परसेप्चुअल पोजिशनिंग, दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना, ये है परसेप्चुअल पोजिशनिंग। हमें बचपन से सिखाया गया दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना सीखो, लेकिन हमें देखने की आर्ट एंड साइंस नहीं आती है। एनएलपी में बाकायदा इसकी आर्ट एंड साइंस होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज हैविंग बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी होना ये इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। कैसे हम अपने आप को एट टाइम्स मोल्ड कर सकते हैं, कैसे चीजों को बदल सकते हैं, कैसे घुमा फिरा सकते हैं, कैसे दूसरे के हिसाब से अपने बिहेवियर को और अपनी स्पीच को एडजस्ट कर सकते हैं। पर्सनली आई बिलीव, ऐसा नहीं है कि यही 11 मॉडल होंगे इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन के, सैकड़ों होंगे। मैंने ये 11 निकाले हैं जिसको मैं कहता हूँ मास इन्फ्लुएंसिंग फ्रेमवर्क, 11 pillars of enriching communications. So that is the full GOPTA NLP framework. So how it benefits? It benefits you in having goals orientation, having well-formed outcomes. कि आपके पास well-formed outcomes हो, ये goals के भी एक ऊपर की चीज है। There is a difference between desire and a goal. Desire कुछ भी है, इच्छा है हमारी, गोल वो इच्छा है जिसके लिए हम काम करने को तैयार हैं। और well-formed outcomes उसके भी एक ऊपर की चीज है कि उसको हम कई चीजों पर, कई कसौटियों पर कसते हैं और फिर उसे well-formed outcome बनाते हैं। दूसरा है कंट्रोल ओवर टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स, enriched communications, empowering and resourceful values and belief system, ये बहुत जरूरी होता है। Congruence among values, identity and purpose, this is very important thing, very 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 important। मैं एक विशेष सेशन करता हूँ, विप्सी सेशन, जिसमें मैं लोगों की ये वैल्यूज, आइडेंटिटी और पर्पस के बीच में सामंजस्य स्थापित करता हूँ। आज तक जिंदगी में 100 से ज्यादा लोगों का किया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, एक भी एक्सेप्शन मिला ही नहीं जिसका इन तीनों के बारे में क्लैरिटी हो और जिनमें सामंजस्य, एक भी लाइफ में मुझे आज तक मिला नहीं। Enriched relationships in personal and professional lives. And the last but not the least, biggest of them, moving from compulsive and reactive living to conscious and responsive living. That's it about today's session. And 1 minute, I will take 1 minute more. फिर जिसके पहले हम फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में जाते हैं कि हाउ डू आई ऑपरेट, मैं क्या क्या करता हूँ। मैं GOPTA NLP के बहुत सारे तरीके के वर्कशॉप्स करता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के। Grow with Goal workshops, 8 sessions of 90 minutes. Enhance your productivity workshop, 3 sessions of 2 hours each. Murder procrastination workshop. Convert more clients workshop for financial advisors, network marketers and sales teams जिनको prospects को client में convert करने की जरूरत पड़ती है। On invitation by corporates or educational institutes. Personal transformation program, Get Reborn program for personal transformation seekers. Winning belief system workshop on invitation, customized sessions. Executive mentoring sessions for personal or group में, team building sessions, relationship and emotional mastery workshop, and ethical mind influencing mastery 2.2 workshops, 20 sessions of 90 minutes, and 1-to-1 sessions on various topics. I wish you all good luck and happy GOPTA, and thank you friend, thank you everyone. This is something about me. आप चाहें तो इसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर कोई मुझसे संपर्क करना चाहें। The floor is open for next 15 minutes for questions and answers. And over to you, Atul ji. संजय जी, GS Ahuja बोल रहा हूँ। Sir, it was a very short exercise, and we talked of what we thought of is our one best virtue